मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि तुम जानते हो कि कल हमने ये जो हमारी सेकंड नंबर पॉइंट थी माय गुड राइट हैंड, हमने कंप्लीटली इसको रीड किया और छोटे वाले क्वेश्चन आंसर कल हमने कंप्लीटली कर लिए थे। आज हम चलते हैं इसी पोएम के बड़े वाले क्वेश्चंस की तरफ। बड़े वाले क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ डीप द poet overcome his sadness? हम लिखेंगे the poet was sad when no friend of his helped him, so he realized that he had a friend to help him above his sorrow and pain. It was his good right hand his faith in God and hard labor was restored This resulted in his prosperity and happiness. ये हुआ फर्स्ट का आंसर। सी का सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट Why does the poet not meet the friends anymore? Not meet
the friends anymore. आंसर लिखते हैं हम. The poet does not need the friends anymore because the poet has found two trusted friends. The poet has found two trusted friends. God and his good right hand. God and his good right hand. So why should he need? So why should he need his selfish friends now who did not help him in his need? In his name. इस तरह सेकंड का भी डन हो गया. हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर थर्ड. What inspirations do we get from the poem? Do we get from the poem? इंस्पायरेशंस बतानी है कि क्या इंस्पायरेशन हमें इस पोएम से प्राप्त होती है. तो आंसर है we learn a lot of lessons. We learn a lot of lessons from this poem. First, we should not depend. We should not depend too much on our friends. Second, we should
courage and work hard by having full faith in God, by having full faith in God. Thirdly, complete one. Question number 4. What does the good right hand represent? What does the good right hand represent? तो हम देखेंगे द गुड राइट हैंड, the good right hand represents hard work and self-dependence and self-dependence. The poet fell on evil days. The poet fell on evil days. He was a victim of poverty, suddenly he realized he had two trusted friends on whom he could depend. फिफ्थ क्वेश्चन जो टेक्सुअल है वो के अंदर आया हुआ है, उसको नहीं लिखना है और उसके प्लेस पर ये क्वेश्चन लिखना है। राइट द थीम ऑफ द पोएम। पोएम की थीम लिखनी है आपको। और ये थी जो आपको बुक मैंने सेंड की है, उस बुक का पेज नंबर 147, पेज नंबर
147 पर है अबाउट द पोएम में, और वो थी मैं आपको लिखा देता हूं। द पोएम इज related with the common theme, with the common theme of poverty, and the way how it can be removed, how it can be removed when the poet fell in grief and some adversity. All his friends and relatives deserted him. No one came to help him. No one came to help him. He found only sympathy. He found only sympathy from them. The poet thinks that trusting other people is like building a castle on sand, is like building a castle on sand. Therefore he decided to believe in God and the hard work to be done by himself. तो with his realization, अब ये आखिरी सीधा एक लास्ट में ये लिखे हम, he overcome his sorrow and soon became prosperous. इस तरह हमने आज यह पोयम जो हमारी सेकंड नंबर पोयम थी उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड
नंबर पोएम को आज रीड करते हैं और क्वेश्चन आंसर के बारे में हम कल सोचेंगे। इसके आज हम थर्ड नंबर पोएम को कंप्लीटली रीड कर लेते हैं और अच्छी पोएम है थर्ड नंबर पोएम नंबर थर्ड द लोटस composed by टोरू दत्त। नाम याद रखना, टोरू दत्त। अब इस पोएम को हम रीड करते हैं। द लोटस, कमल का फूल। कैसे? लव came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed twin. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. अब क्या हुआ? यहां दो वर्ड आए हैं। एक वर्ड आया है लव, दूसरा वर्ड आया है फ्लोरा। तो लव का तो अर्थ हो गया प्रेम का देवता, लव का देवता, प्रेम का देवता। और फ्लोरा हो गया फूलों और वनस्पति की देवी। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा फूलों और वनस्पति की देवी है। तो क्या है? लव कैम टू फ्लोरा, लव का देवता, प्रेम का देवता फूलों और वनस्पति की देवी के पास आया। क्यों आया? आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक फूल मांगने के लिए, एक पुष्प मांगने के लिए फूलों और वनस्पति की देवी के पास आया। और कैसा फूल, कैसा पुष्प चाहिए उसको? दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड ट्विन, दैट वुड ऑफ फ्लावर, जो सभी फूलों में बी अनडिस्प्यूटेड ट्विन, सर्वमान्य रूप से, अनडिस्प्यूटेड सर्वमान्य रूप से, ट्विन फूलों की रानी। तो लव फ्लोरा की देवी के पास आया, फ्लोरा के पास आया और कहा मुझे एक ऐसा पुष्प दो, एक ऐसा फूल दो जो सर्वमान्य रूप से, यानी कि उसको सभी लोग मान ले कि हाँ भाई ये फूलों की रानी है, सबसे सुंदर फूल है। एक ऐसा फूल मुझे दो, ऐसा फूल मांगने के लिए वह उसके पास आया। द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन, लिली, अब तीसरा किरदार आया हमारे पास लिली, और चौथा है किरदार कैरेक्टर्स रोज। लिली जो कुमुदिनी का पौधा होता है, कुमुदिनी का फूल होता है, और रोज सबको पता ही है गुलाब का फूल। उन दोनों के लिए क्या है? द लिली एंड द रोज, कुमुदिनी का फूल और रोज का फूल लॉन्ग हैड बीन, लंबे समय से, बहुत सालों से, रिवल्स यानी प्रतिद्वंदी होना, आपस में उनकी कंपटीशन था, प्रतिद्वंदी थे दोनों, एक दूसरे के विरोधी थे। फॉर दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए कुमुदिनी और रोज दोनों ही कई वर्षों से इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदी थे, रिवल थे। तो दोनों लड़ रहे थे, वो कह रहा फूलों की रानी मैं हूं, ये कह रहा फूलों की रानी मैं हूं। तो दोनों में रिवल चल रहा था। Bards of power had sung their claims, बार्ड्स ऑफ पावर, महान कवियों ने, बार्ड्स ऑफ पावर महान कवियों ने या महान कवियों के समूह ने, हैड संग कविताएं लिखी है, कविताएं गाई है, देयर क्लेम्स उनके दावों को लेकर। कई महान कवियों ने, कुछ लिली के पक्ष में थे, कुछ रोज के फेवरेट थे हमारे, तो कई महान कवियों ने उनके दावों को लेकर कई सारी कविताएं गाई हैं। अब क्या है दावे? पहले रोज का पढ़ ले।
द रोज कैन नेवर टावर like the pale lily with her Juno mind, but is the light lovelier? Thus between flower factions ran the stars in sides bower. तो the rose can never tower, रोज जो है टावर यानी सर्वोच्च स्थान, रोज कभी भी इस सर्वोच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। कई कवियों ने कहा रोज तो इस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। लाइक द पैल लिली, उस पीले रंग के कुमुदिनी वाला जो फूल है उसके समान रोज जो है वो कभी भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। विद हर जुनो माइन, और लिली के लिए क्या कहा गया है? जुनो माइन, वर्षा के देवता की एक बहुत सुंदर पत्नी है जुनो। वर्षा के देवता जो है इंद्र देवता, उनकी जो पत्नी है वो कौन थी? वो जुनो। जुनो के साथ कंपैरिजन हो रहा है लिली का, कि लिली जो है उसकी कंपैरिजन किसके साथ हुई? जुनो के साथ। वर्षा के देवता की जो पत्नी है जुनो, उसके साथ कंपैरिजन करते हुए कहा कि रोज जो है वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि लिली जो क्या है? लिली वर्षा के देवता की बहुत सुंदर पत्नी जुनो के समान सुंदर है। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन क्या लिली अधिक सुंदर है? प्रश्न पूछा गया है, लेकिन क्या लिली अधिक सुंदर है? थस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैन द स्ट्राइप इन साइज पावर, इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शन, फूलों के ग्रुप के बीच, फूलों के समूह के बीच रैन द स्ट्राइप, झगड़ा चलता रहा। इस प्रकार फूलों का जो ग्रुप था, मंडली थी, उनके बीच झगड़ा चलता रहा। इनसाइड जो पावर, मनुष्य के मन के अंदर जिस प्रकार अलग अलग भेदभाव चलते हैं, उसी प्रकार इनके बीच भी अलग अलग बातें चलती रही। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज and stately as the lily in her pride। तो give me a flower, अंत में लव ने कहा फ्लोरा को कि give me a flower, मुझे ऐसा फूल दो, delicious, मधुर सुगंधित हो, as the rose, गुलाब की तरह तो जो मधुर सुगंधित हो, ऐसा फूल दे दो। and stately, stately यानी शानदार, as the lily in her pride, जब लिली गर्व में होती है, गर्वित होती है, अपने आप पर अभिमान करती है, कब? जब ये खिलती है, जब अभिमान होता है इसको अपने ऊपर, उस तरह शानदार फूल आप मुझे दो जो गुलाब की तरह तो सुगंधित भी हो और लिली की तरह शानदार भी हो। बट ऑफ व्हाट कलर, फ्लोरा ने पूछा, भाई तुमने कह तो दिया इस तरह का मुझे फ्लावर दो, लेकिन किस कलर का दूं वो तो बताओ। रोज रेड, गुलाब की तरह लाल कलर का। लाओ फर्स्ट चूज, लाओ ने पहले तो चुना कि आप ऐसा करो मुझे गुलाब की तरह लाल दे दो। देन ब्रेड, तब प्रार्थना करने लगा, नहीं 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 नहीं, नो लिली वाइट, लिली की तरह सफेद दो। उसके मन में भी कंफ्यूजन चल रहा है लव के मन में, पहले तो कह रहा है रोज की तरह रेड दे दो, बाद में कह रहा नहीं 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 लिली की तरह वाइट दो। और बोथ प्रोवाइड, या तुम ऐसा करो मुझे दोनों ही प्रदान करो, एक ऐसा फ्लावर दे दो जिसमें रोज भी हो, रोज का कलर भी हो और लिली का कलर भी हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड, और फ्लोरा ने उसको लोटस दिया, कमल का फूल दे दिया। फ्लोरा ने कहा ये रखो तुम कमल का फूल, लोटस का फूल तुम ये रखो, जो रोज रेड, रोज की तरह तो रेड है, डाइड रंगा हुआ, जो रोज रेड में रंगा हुआ था, एंड लिली वाइट, और लिली की तरह सफेद कलर में रंगा हुआ था। ऐसा तुम ये पुष्प ले लो। द ट्विन लिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, ब्लोज यानी खिलना, द ट्विन लिस्ट फ्लावर सबसे शानदार दिखाई देने वाला फूल जब खिलता है, लोटस का फूल जब खिलता है तो यह सबसे शानदार दिखाई देता है। इस तरह लव की बात को, लव की विश को फ्लोरा ने पूरा किया और अंत में
लोटस के फूल को सब फूलों की रानी के रूप में प्रदान कर दिया गया, तब से लोटस को ही फूलों की रानी कहा जाता है, जो सर्वमान्य रूप से फूलों की रानी है। इस तरह हमने आज टोरू दत्त के द्वारा ये जो चैप्टर था, पोयम थी हमारी द लोटस, इसको हमने कंप्लीटली रीड किया और 2 पोयम हम कर चुके हैं। दोनों के क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट है और आप इसका होमवर्क आज शाम तक सेंड कर दें और द लोटस 3rd पोयम के क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल करवाऊंगा।